So guys, let's start. What is the meaning of the word memorandum? First thing which we are learning here. So memorandum here, this is a scrap definition. We have just kept it for the namesake. We started here. What is memorandum, guys? See, memorandum is a document which is been the core document of the company. Core, the most essential, the document which tells all about the company. कंपनी का नाम, एड्रेस, कैपिटल, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी के सब्सक्राइबर्स कौन है, इन्वेस्टर्स कौन है, everything you get it from memorandum. So if you are entering into a contract with company by investing in shares of the company, buying some products, selling some products to the company, are they entering into some contracts like buying a property, selling a property to the company, any bloody contract, it is very important for you to understand the memorandum of the company first. It's very important for you to understand articles of the company first. If you're giving a loan to the company, providing some CC facilities, issuing debentures and taking some debentures out of it, every significant contracts what you make it. It's quite important for you to understand the impact of memorandum. Now, how do you get the memorandum? So they have kept it very public. They have kept it as a public document. So what is memorandum all about? Memorandum is nothing but a public document. Now, what do you mean by public document? So it means that it is accessible to everyone. If you go to the website of ROC, website of the company itself, you will get all the memorandums together. तो memorandums ऐसी चीज़ है जो आपको इजीली मिल जाएगी, पब्लिकली मिल जाएगी, क्योंकि उसके अंदर कुछ कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, वो सिर्फ ऐसी डिटेल्स देना चाहता है जो उसको खुद बतानी है, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी को खुद बताना है कि कंपनी क्या काम करेगी, कैपिटल कितना है, लायबिलिटी कैसी है, कहाँ रहता है, ऑफिस किधर है, नाम क्या है, वो सब कौन बताना चाहता है? वो खुद. बट बिकॉज इट्स आर्टिफिशियल पर्सन, वो खुद नहीं बोल पाता है, तो वो खुद बोलने से बचे क्या कर रहा है, वो लिख के दे रहा है. और वो लिखता क्या है, कैसे है, वही क्या है आपका memorandum. The members makes a memorandum, and memorandum is basically been made to make sure the public realizes the same कि what is company all about. तो ऐसा नहीं है कि you cannot get articles और memorandum of reliance. आपको कोई भी कंपनी का 2 मिनट में MOA मिल जाएगा, AOA मिल जाएगा, कोई भी कंपनी का इंडिया की. इनफैक्ट इंटरनेशनली कोई भी कंपनी का मेमोरेंडम और एसोसिएशन चाहिए, इट्स क्वाइट एन इजी जॉब, इजीली एक्सेसिबल टू एनीवन इन इंडिया. ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे. मेमोरेंडम कंटेन्स ऑब्जेक्ट्स of which the company is formed and therefore identify the possible scope of its operation beyond which actions cannot go. It defines as well as confines the powers of the company. In short, it मेमोरेंडम कंपनी का स्कोप फिक्स कर देता है, क्या काम कंपनी कर पाएगा और क्या काम कंपनी नहीं कर सकता, वो कहाँ से समझ में आएगा? मेमोरेंडम से. It enables the shareholders, creditors, and those who deal with the company to know whether its powers are and what is the range of activities what they can do. See, understand it very well. If I want to invest in a company which does not deal in non-veg sector, suppose, example, if I want to identify the company, so here that is where I am saying you all, okay, suppose I am into a company which I don't want to invest in a sector which is a non-veg sector, and suppose एक company है जो फिशिंग सेक्टर में है, फिशिंग. तो जैसे ही मैंने उसका मेमोरेंडम पढ़ा, मैंने देखा कि कंपनी फिशिंग सेक्टर में रहेगी, कंपनी कॉलियर ऑयल बनाएगी, तो मैंने सोच लिया कि नहीं भाई, मुझे ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, मेरी मर्जी. तो हाउ डू आई नो दिस, हाउ डू आई नो दिस? आई नीड टू फाइंड आउट द मेमोरेंडम का ऑब्जेक्ट लॉस. आई नीड टू असेस कंपनी का ऑब्जेक्ट लॉस में क्या लिखा है. लिखा था कि हम मच्छी मच्छी को सी से फिर हंट करके उसे उसमें से कॉलियर ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो मुझे ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करें, वो मेरा मर्जी. वैसे ही हर एक का एक ऑब्जेक्टिव होता है. जो भी रिसर्चर्स होते हैं, रिसर्चर्स जो इक्विटी का रिसर्च करते हैं, इक्विटी वैल्यूएशंस करते हैं, कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं वो बताते हैं, उसका सबसे पहला एलिमेंट क्या होता है? मेमोरेंडम होता है. दे आइडेंटिफाई कि एमओए के अंदर कंपनी क्या क्या बिजनेस कर सकती है. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज दैट लाइन विच आई हैव हाईलाइटेड हियर. So enables the shareholders, the creditors, those who will deal with the company to know what are its powers are and what is the range of activities what company can perform. तो ये एक्टिविटीज आपको क्लियर कहाँ से होती है? मेमोरेंडम. इसका सेकंड एलिमेंट जो उसको थोड़ी देर के बाद पढ़ना है, इसलिए मैंने उसको अभी तक हाईलाइट नहीं किया. नेक्स्ट इज इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट. मैंने कहा इट्स एन एक्सेसिबल टू एवरी वन ऑफ यू इन द एंटायर वर्ल्ड. इफ यू गो टू ROC's वेबसाइट, रिलायंस वेबसाइट, एवरीवेयर यू विल गेट टू सी द मेमोरेंडम्स, एक्सेसिबल एवरीवेयर. ठीक है.
तो you have to write what this is what you have to write as introduction to MOA. This element, this is something which you have to remember for introduction to memorandum of association. ठीक है, आगे ही कहता है कि हर एक कंपनी का क्या अलग अलग एमओए होगा. डेफिनेटली यस, एवरी कंपनी विल हैव इट्स ओन मेमोरेंडम एंड दे हैव रजिस्टर्ड विद आरओसी फर्स्ट, नहीं तो वो कंपनी बनेगी ही नहीं. फर्स्ट यू हैव टू सबमिट दिस टू आरओसी, ओनली देन कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड. When I move forward further, ये कहता है व्हाट शुड बी द एक्चुअल कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. एमओए का एक्चुअल कंटेंट क्या होगा. तो ये कहता है सर पहले तो इसका नाम आएगा. एमओए के अंदर पहले लिखा होगा नाम, कंपनी का नाम क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज नाम. नंबर 2, उसके नाम के साथ साथ क्या लिखा है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड या कुछ नहीं लिखा. तो अगर प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है. अगर लिखा लिमिटेड तो क्लिक है, तो फिर वो कंपनी क्या है, पब्लिक लिमिटेड है. अगर लिखा है कुछ नहीं तो वो क्या हो सकती है, सेक्शन 8, दैट इज नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो सकती है. तो आपको नाम से समझ में आता है कंपनी क्या कर सकती है. नंबर 2 है सिचुएशन क्लॉज. सिचुएशन क्लॉज मतलब एड्रेस, कौन से स्टेट में कंपनी रजिस्टर होगी, कौन से स्टेट में कंपनी रजिस्टर होगी, उसे कहते हैं सिचुएशन क्लॉज. तो यहाँ पे लिखा होगा कि हम महाराष्ट्र में रजिस्टर होने वाले, हम गुजरात में होने वाले, कहीं पे भी, तो वो स्टेट का नाम लिखा होगा. आप पूछोगे सर स्टेट का नाम क्यों लिखा है, क्यों कुछ और नहीं लिखा एड्रेस. तो सी मेमोरेंडम है ना, डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, उसको आप एड्रेस चेंज करोगे, आपने ऑफिस चेंज की तो एड्रेस चेंज करने के लिए आपको एमओए चेंज करना पड़ेगा. इसलिए ऐसा ना हो, इसलिए उन्होंने सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेट. आपको लोकल अंदर आप जो भी चेंजेस करो उसमें तकलीफ मेमोरेंडम पे नहीं आएगी, क्योंकि आपने यहाँ पे सिर्फ क्या लिखना है, कौन से स्टेट में आप ऑक्यूपाई होने वाले हो. नंबर 3 ऑब्जेक्ट लॉस. तो ये कहता है आपके ऑब्जेक्ट लॉस के अंदर क्या लिखा होगा, आपका बिजनेस क्या है वो, और उस बिजनेस के कनेक्टेड बिजनेस क्या क्या हो सकते हैं वो आपका ऑब्जेक्ट लॉस है. योर बिजनेस फॉर विच यू आर क्रिएटिंग योर कंपनी एंड द बिजनेस लिंक टू द सेम. जैसे इफ आई मीन टू कार सेक्टर, तो कार के साथ क्या कनेक्ट हो सकता है, एक्सेसरीज कनेक्ट हो सकता है, टायर्स कनेक्ट हो सकता है. तो देर माइट बी सम थिंग्स विच सम एक्सेसरीज लिंक टू व्हाट, म्यूजिक सिस्टम्स एक्सेट्रा, सीट कवर्स एक्सेट्रा. तो देर माइट बी पॉसिबिलिटी दैट कनेक्ट इज कनेक्टेड टू योर ऑब्जेक्ट लॉस, राइट. तो ऑब्जेक्ट लॉस वो एंड everything is connected to that will be a part of your object loss. फिर आता है लायबिलिटी क्लॉज. यहाँ पे आपको ये बताना है कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है. अगर लायबिलिटी लिमिटेड है तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी, या फिर आपको ऑलरेडी पता है अनलिमिटेड कंपनी भी होती है. तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मेमोरेंडम के चौथे पड़ाव में आपको ये समझ में आ जाता है कि आप जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी, लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी, वो सबके नाम यहाँ पे लिखे जाएंगे. फिर आता है कैपिटल लॉस. इस कैपिटल लॉस में आपको ये बताया जाता है कि कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल कितना होगा और उसके फेस वैल्यू पर शेयर कितना होगा. आई रिपीट, 10 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 55 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, ऐसा कुछ भी स्टेट में लिखा होगा. आई रिपीट, यहाँ पे सिर्फ ऑथोराइज कैपिटल होता है, यहाँ पे इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ये सब यहाँ पे नहीं होता, वो सब आपके बैलेंस शीट में जाता है. यहाँ सिर्फ ऑथोराइज द मैक्सिमम कैपिटल व्हाट कंपनी कैन रेज, वो यहाँ पे आता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं. फिर आता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज. सर आपको पता होगा प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए, पब्लिक के अंदर मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए, और ओपीसी में मिनिमम 1 मेंबर चाहिए, मैक्सिमम भी 1 ही होता है वहाँ पे. तो ये जो 2 और 7 मेंबर्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उन्हें पहले सब्सक्राइबर बनना पड़ता है. सब्सक्राइबर मतलब कौन, एमओए में उनका नाम लिखा जाता है कि हम ऐसे सब्सक्राइबर्स बनेंगे, जैसे ही कंपनी फॉर्म हो जाएगी हम उसके मेंबर बनने को तैयार है. ऐसे मिनिमम कितने नाम चाहिए, 2 फॉर प्राइवेट एंड मिनिमम कितने चाहिए, 7 फॉर पब्लिक. अगर ये नाम नहीं मिलेंगे तो कंपनी बनेगी ही नहीं. तो जो पहले नाम है, जो पहले मेंबर्स कंपनी के बनने वाले हैं वो कौन होंगे, सब्सक्राइबर्स. उनका नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, उनको कितने शेयर्स खरीदने हैं वो, उसके कितने अमाउंट उनको पे करना पड़ेगा वो, उनका सिग्नेचर और उनके विटनेस का सिग्नेचर, ये सारा का सारा फॉर्मेट में लिखा होता है अंडर व्हाट, मेमोरेंडम. मैं आपको कल एक मेमोरेंडम का सॉफ्ट कॉपी भेजूंगा किसी क्लाइंट का, यू विल अंडरस्टैंड इट मोर बेटर. यह है आपका सब्सक्रिप्शन क्लॉज. जैसे ही कंपनी बनती है सब्सक्राइबर्स मेंबर बन जाते हैं एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ना पहले ना बाद में, बोथ एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. आप कहोगे कंपनी पहले बनेगी, कोई कहेगा मेंबर पहले, कोई कहेगा मेंबर पहले बनेगा, मैं बोलूंगा दोनों साथ में बनेंगे.
कंपनी के बिना मेंबर नहीं हो सकते, मेंबर के बिना कंपनी नहीं हो सकती, इसलिए कंपनी मेंबर कब होंगे? साथ साथ होंगे। तो दिस इज योर 6 पॉइंट सब्सक्रिप्शन क्लॉज. योर 7 पॉइंट सेज अबाउट नॉमिनेशन क्लॉज. यू हैव सीन ओपीसी कंपनीज. ओपीसी में हमने कहा था इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ मेंबर क्या होना जरूरी था? नॉमिनी. यहाँ पे क्या बन रहा है? नॉमिनेशन बन रहा है कि वो बंदा 7 पॉइंट यहाँ पे ऐड करेगा, लेकिन ये सिर्फ कौन से कंपनी में आएगा? सिर्फ ओपीसी में आएगा, बाकी कंपनीज में नॉमिनेशन क्लॉज होता नहीं है. ये क्या है? कौन मेरे बदले मेरे मरने पे इस कंपनी का मेंबर बनेगा, उसे हम कहेंगे नॉमिनेशन क्लॉज. ओनली एप्लीकेबल टू 1% कंपनीज. लास्ट पॉइंट है कि मेमोरेंडम के कौन से फॉर्मेट्स है? टोटल 5 फॉर्मेट्स है. टेबल को फॉर्मेट्स कहते हैं. यहाँ में आई से फॉर्मेट्स को यहाँ पे टेबल कहते हैं, ABCD. पहला टेबल ए, अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो आपके ऊपर टेबल ए से आपको एमओए बनाना है. टेबल ए को फॉर्मेट को देख के. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है विथ नो शेयर कैपिटल, टेबल बी के हिसाब से बनाना है. लिमिटेड बाय गारंटी विथ शेयर कैपिटल, टेबल सी के हिसाब से. लिमिटेड बाय अनलिमिटेड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, टेबल डी. एंड अनलिमिटेड कंपनी विथ शेयर कैपिटल, टेबल ई. तो 5 टेबल्स है ABCD. पहला आता है लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा गारंटी विद नो शेयर्स, तीसरा गारंटी विदाउट विद शेयर्स, चौथा अनलिमिटेड विदाउट शेयर्स एंड फिर पांचवा अनलिमिटेड विद शेयर्स. 5 कंपनीज अलग अलग टाइप की और 5 अलग अलग टाइप के टेबल्स. ये क्या है? फॉर्मेट है. टेबल्स भी मिलेंगे ऑनलाइन इजीली. आपको चाहिए मुझे बोलो, मैं वो दूंगा. टेबल मतलब फॉर्मेट, और उस फॉर्मेट को देख के आप क्या बना सकते हो? आपकी कंपनी का मेमोरेंडम बना सकते हो. दे हेल्प यू टू गेट द फॉर्मेट्स रेडी. अब यहाँ पे आपका एमओए पूरा होता है. लेट्स रिकैप इट. मेमोरेंडम क्या है सर? मेमोरेंडम एक कुंडली है जो कंपनी के बारे में हमें जानकारी देती है. जानकारी जैसे कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी की लायबिलिटी कितनी होगी, कंपनी का कैपिटल कितना होगा, कंपनी के सब्सक्राइबर्स कौन होंगे, कंपनी का नॉमिनी कौन होगा, और कंपनी के कौन से टेबल्स को फॉर्मेट को हमें फॉलो करना है. ये सब चीज़ें हमें कहाँ से समझ में आएगी? मेमोरेंडम से. आप कहता हूँ अगर आपको इन्वेस्टर बनना है, इक्विटी में इन्वेस्ट करना है किसी कंपनी के, तो आपको क्या देखना पड़ेगा? कंपनी का मेमोरेंडम. समझ में आएगा कंपनी क्या करना है. अगर आपको बिजनेस करना है, कंपनी को माल बेचना है, कंपनी को माल कंपनी से माल खरीदना है, आपको क्या देखना पड़ेगा? मेमोरेंडम. क्या आप जो कर रहे हो कंपनी के ऑब्जेक्ट लॉस के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आपने जो बिजनेस किया कंपनी ऑब्जेक्ट में है ही नहीं, आपने टाटा मोटर्स को क्या बेच दिया? 100 किलो गेहूँ बेच दिए, चलेगा? नहीं. आपने अगर TCS को कुछ और बेच दिया, कार्स बेच दी, सर आपको ये समझना है कंपनी के ऑब्जेक्ट में वो आता है या नहीं आता. आता है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं आता है तो आप नहीं कर सकते. इसी पे आगे का कहानी है, आपको और समझ में आएगा. लेट्स मूव फॉरवर्ड. दिस इज द पार्ट विच यू हैव टू रिमेंबर. नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, you have your object clause, liability clause, capital clause, subscription clause, and your nomination clause. Here we learn what do you mean by articles of association. सर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है? एओए एक रेगुलेशंस है जो कंपनी को फॉलो करने होते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए. आई रिपीट व्हाट आई सेड. एओए आर द रेगुलेशंस व्हिच कंपनी हैज टू फॉलो टू अचीव देयर ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स कहाँ लिखे गए हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. फाइनली इट्स क्वाइट क्लियर कि मेमोरेंडम में जो लिखा है उसको अचीव करने के लिए आपने एओए बनाया है. मतलब क्या करना है वो है एमओए, कैसे करना है वो है एओए. व्हाट टू डू इज एमओए, हाउ टू डू इज एओए. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू. So guys, let's start with the topic anticipated for doctrines. What do you mean by doctrines? Doctrines refers to rules. Doctrines refers to principles, the regulations. Now we are referring to doctrine of ultra wires. ऐसे 3 डॉक्ट्रिन्स है और वो उसमें से एक आना बनता है एग्जाम्स के लिए. दिस विल टेक अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम. पेशेंस रखना. अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड, wires means powers. Doctrine of ultra wires will be under referring to the rules and regulations when the contract entered is beyond the powers of the company. Ultra wires beyond the powers. Ultra wires beyond the powers. Ultra means beyond and in or in excess of, and wires means the powers. Thus, ultra wires means an act or transaction which is beyond or in excess of the powers of the company. An act or transaction shall be ultra wires if it is not permitted under the by the Companies Act,
it falls outside the object clause of the memorandum, and its attainment is not incidental to the attainment of main object. Let's understand the same. आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपकी एक्टिविटी, आपका अग्रीमेंट, आपका ट्रांजेक्शन बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी होगा अगर वो नॉट परमिटेड है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। जैसे कि मैं कहता हूँ इलीगल ऑब्जेक्ट्स, यू कैन से दैट इट फॉल्स आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट लॉस ऑफ द मेमोरेंडम। आपका काम है गाड़ी बनाना, आपका काम है ट्रेनिंग ऑफ कार्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स, तो आपको कल बोले कि आप सॉफ्टवेयर बनाओ, तो सॉफ्टवेयर का कॉन्ट्रैक्ट करना आपके ऑब्जेक्ट लॉस के बाहर जाएगा। नंबर 3, इट्स अटेनमेंट इज नॉट लिंक्ड टू द मेन ऑब्जेक्ट। इट्स अटेनमेंट इज नॉट लिंक्ड टू द मेन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बिजनेस है कार मैन्युफैक्चरिंग का और आपने क्या किया, कार इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट किया, नाउ कार इंश्योरेंस विल नॉट से इट्स इंसिडेंटल टू दैट। टाटा का कार, टाटा मोटर्स अलग कंपनी है, टाटा इंश्योरेंस अलग कंपनी है, और टाटा फाइनेंस अलग कंपनी है, तो इंश्योरेंस इज नॉट इंसिडेंटल टू द मेन। मैं कह सकता हूं कि भाई एक मौके पे आप कह सकते हो सर्विसिंग विल बी इंसिडेंटल टू द मेन, रिपेयर सर्विस विल बी इंसिडेंटल टू मेन, पर आप शुरू क्या कर दो इंश्योरेंस, तो वो क्या होगा, नॉट इंसिडेंटल टू इट। मतलब आपके कंपनी के ऑब्जेक्ट लॉस के बाहर क्या होगा, तो आपके कंपनी के ट्रांजैक्शंस जो अल्ट्रा वायर्स है, माने ऑब्जेक्ट लॉस के बाहर है, बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी है, वो कैसे बनते हैं, या तो वो कंपनीज एक्ट के पर्व्यू के बाहर है, इलीगल है, अनलॉफुल है, या तो फिर वो कंपनीज एक्ट के नहीं, आपके मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट लॉस के बाहर है, या तो वो मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट लॉस के जो इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स की बात की है उसके बाहर जा रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड द सेम विद अ केस स्टडी। ये है केस का नाम, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिची। एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिची, क्लासिक केस स्टडी, जिंदगी भर भूल नहीं सकते ऐसा केस स्टडी है। अब समझते कैसे ये पढ़ा जाता है। कंपनी का आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट लॉस दिया है, ऑब्जेक्ट लॉस कहता है, ध्यान से देखना, टू मेक सेल और लैंड और ऑन हायर रेलवे कैरेजेस एंड वेगन्स। रेलवे के कैरेजेस, डब्बे, कोचेस बनाना, बेचना या भाड़े पे देना, ये इनका सबसे मेन बिजनेस था। नंबर 2, टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। नंबर 2 बिजनेस लिखा गया था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स करना एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, मतलब ऑलवेज लिंक टू व्हाट, योर रेलवेज, वैगन्स एक्सेट्रा। और लास्ट में लिखा है उन्होंने, टू परचेज, लीज, वर्क एंड सेल माइंस, मिनरल्स, लैंड्स एंड बिल्डिंग्स। तो माइंस को, मिनरल्स को, लैंड एंड बिल्डिंग को खरीदने, बेचने और लीज पे देने का काम भी ये कंपनी करती थी। यहाँ पे रेलवे कैच भी आ गया और आयन कंपनी भी आ गया, दोनों चीज कवर हो जाती है। अब क्वेश्चन ये था कि ये इनको ऑब्जेक्ट लॉस है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या एंटर किया, देखो कंपनी ने एंटर किया कॉन्ट्रैक्ट विद रिची फॉर फाइनेंसिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन लाइन इन बेल्जियम। कंपनी ने कहा रिची को कि तुम एक कंस्ट्रक्शन रेलवे लाइन डाल रहे हो ना, हम आपको फाइनेंस करेंगे। अब पंगा ये हो गया कि कंपनी के ऑब्जेक्ट लॉस के अंदर जो 3 ऑब्जेक्ट्स है उसके अंदर ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्या ये अल्ट्रा वायर्स है या इंट्रा वायर्स है। अल्ट्रा मतलब क्या ये ऑब्जेक्ट के बाहर जा रहा है, या इंट्रा है क्या ये ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है। हमें ये देखना है कि अगर वो ऑब्जेक्ट के अंदर है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अगर वो ऑब्जेक्ट के बाहर है तो वर्ड अग्रीमेंट बनेगा, क्योंकि कंपनीज एक्ट के मेमोरेंडम को देख के आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। अगर मेमोरेंडम में ही लिखा नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। क्वेश्चन यहाँ भी आता है, विल फाइनेंसिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन will be a part of the object clause of the company or not. The court held that the company could not finance the construction of a railway line by alleging that the such business falls under the business of general contractors. अब देखिए, आपको मैं समझाता हूं, क्या फाइनेंस देना इस पॉइंट में आता, रेलवेज को बनाना अलग बात है और उसको बनाने के लिए लोन देना अलग बात है। तो क्या टू मेक सेल और लैंड में ये आता, नहीं। टू कैरी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फाइनेंसिंग देना आता, नहीं।
टू परचेज लीज सेल माइन मिनरल्स मैनेजमेंट का इसमें आता नहीं, सिर्फ एक ही शब्द बचा, वो क्या है, ये। कंपनी ने ये अलर्ज किया कि जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स के अंदर ये भी आ जाएगा, लोन देना। कोर्ट ने बोला ये पागलगिरी बंद करो, जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर फाइनेंसिंग पार्ट आने का सवाल ही नहीं उठता। मतलब आपका जो फाइनेंसिंग का कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या माना जाएगा, वॉइड अग्रीमेंट। ऋषि ने पैसे मांगे कंपनी से, आपने प्रॉमिस किया पैसे दो, लेकिन कंपनी पे एनफोर्स कर नहीं पाया क्योंकि कंपनीज और लॉ ने क्या बोला, ये तो ऑब्जेक्ट लॉस के बाहर है, कंपनीज एक्ट के परव्यू के बाहर है। कंपनीज एक्ट में लिखा है कि मेमोरेंडम को पढ़ के उसके एमओए में जो लिखा है वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे। मेमोरेंडम में लिखा ही नहीं है कि कंपनी फाइनेंस दे सकती है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो गलत है, कंपनी का कंसेंट ही नहीं इसके ऊपर, मेमोरेंडम के बाहर है, लॉफुली इसे अल्ट्रा वायस कहा जाता है। मतलब सर ये बोल दो ना कि जो ट्रांजैक्शन कंपनीज एक्ट के मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट के अंदर आता है वो इंट्रा वायस है, वो ही बनेगा वैलिड एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, और जो कॉन्ट्रैक्ट उसके परव्यू के बाहर जा रहा है वो बनेगा अल्ट्रा वायस, अल्ट्रा वायस इन नेचर, इज वर्ड अग्रीमेंट। आर यू क्लियर विद दिस? यस सर। वापस एक बार, इन्होंने कहा कि जो ट्रांजैक्शंस बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी है उसे अल्ट्रा वायस कहा जाता है। बियॉन्ड द पावर्स ऑफ व्हाट, बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द एक्ट, मेमोरेंडम या एंसिलरी टू मेमोरेंडम, दैट इज ऑब्जेक्ट लॉस। ठीक है, आगे जाते थे तो उन्होंने केस स्टडी बोला कि एशबरी रेलवे गैरेज एक कंपनी थी जिसका ऑब्जेक्ट क्या था, रेलवे गैरेज बनाना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बिजनेस करना, या फिर लैंड बिल्डिंग माइंस को बेचना। उसमें एक वर्ड है जनरल कॉन्ट्रैक्ट जिसको डिफाइन नहीं किया गया था, इसमें जनरल वर्ड था, कुछ भी आ सकता था। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया रिची के साथ कि मैं आपको फाइनेंस दूंगा, आप मस्त अब बनाइए रेलवे लाइन बेल्जियम में। रिची मान गया और उसे शुरू कर दिया। फिर कंपनी पैसे दे भी नहीं पाई, रिची ने केस किया। यहाँ पे लॉ ने क्या बोला कि भाई ये सिचुएशन के अंदर फाइनेंसिंग जो है वो फाइनेंसिंग का पार्ट आपके ऑब्जेक्ट लॉस में है ही नहीं, तो कंपनी फाइनेंसिंग दे सकती नहीं है। तो फाइनली कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये आपका अल्ट्रा वायस माना जाएगा, ये कोर्ट के परव्यू में ऑब्जेक्ट लॉस के अंदर सूट होता नहीं है, ये वॉइड अग्रीमेंट माना जाएगा। आइए जाते हैं आगे। An act which is ultra vires the company is void and has no legal effect. Neither company nor the contracting party derives any right under the ultra vires contract. Even ratification of ultra vires contract made by the whole body of shareholders does not make ultra vires contract valid or enforceable. ये कहता है अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन वॉइड है, वॉइड था और वॉइड रहेगा, ये वर्ड अग्रीमेंट बनेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं, वर्ड अग्रीमेंट। लीगली वर्ड अग्रीमेंट होता है, सिनोनिमसली ये लोग कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज करते हैं, बट जिसको कॉन्ट्रैक्ट समझ में आता है उसको पता है ये वर्ड अग्रीमेंट है, ये वर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ट्रांजेक्शन इज वॉइड एब इनिशियो, मतलब स्टार्टिंग से वॉइड, वर्ड अग्रीमेंट। फिर ये कहता है क्या रेटिफाई होगा या नहीं होगा। एन अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शंस कैन नॉट बी रेटिफाइड एवर, कभी भी रेटिफाई नहीं हो सकता, मतलब सुधर नहीं सकता, वायलिड नहीं बन पाएगा, वॉइड था और वॉइड ही रहेगा। ये कहता है इंजंक्शन, क्या अगर मेंबर को पता चला कि कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने जा रहा है उन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रा वायर्स हो सकता है, उससे आगे जाकर वो वर्ड अग्रीमेंट बनेगा, तो कंपनी को मेंबर रोक सकता है टू एंटर इनटू सच कॉन्ट्रैक्ट। इसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम इंजंक्शन कहते हैं, मतलब राइट टू रिस्ट्रिक्ट समवन टू परफॉर्म एन एक्टिविटी। तो यहाँ पे लिखा है एनी मेंबर मे ऑब्टेन इंजंक्शन फ्रॉम होम, तो कोर्ट, an order restraining the company from proceeding with ultra vires contract। जो पता चल चुका है अल्ट्रा वायर्स उसको रोको, उसको आगे बढ़ने से रोको क्योंकि उसमें नुकसान होगा सबका। तो लॉ ने क्या बोला कि आप चाहो तो अगर आपको पता चल चुका है एज ए मेंबर कि आपकी कंपनी जो एंटर कर रही है वो अल्ट्रा वायर्स है, ठीक है, हमें बताओ, हम उसको क्या कर देंगे, रोक देंगे, इंजंक्ट कर देंगे, प्रिवेंट कर देंगे। सर अगर मान लीजिए इसमें कोई नुकसान हो गया तो अल्ट्रा वायर्स के अंदर, इफ अ फंड्स ऑफ द कंपनी आर बीन मिसअप्लाइड और वेस्टेड by entering into ultra vires transaction, directors shall be liable personally for the breach of trust। कौन लाइबल होगा, कंपनी के डायरेक्टर्स लाइबल रहेंगे, फॉर व्हाट, फॉर द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, आपका यहाँ पे तीन चीजें खत्म होती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट, इससे मैं और डिटेल में जा रहा हूँ, सुनो ध्यान से।
पहला पॉइंट मीनिंग ऑफ अल्ट्रावायलेट ट्रांजैक्शन, दूसरा पॉइंट केस स्टडी, तीसरा पॉइंट इफेक्ट्स। याद करो मैं जो बोल रहा हूँ, पहला पॉइंट मीनिंग, दूसरा पॉइंट केस स्टडी, तीसरा पॉइंट इफेक्ट। मीनिंग क्या है? द टर्म अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड एंड पावर्स मीन्स पावर एंड वायर्स मीन्स पावर्स। दिस says that a company cannot enter into a contract which is beyond the powers of the company. Any contract entered, any transaction made shall be within the purview of Companies Act, within the purview of object laws, and within the purview of the transaction incidental to the object laws. Case study: Ashbury Railway Carriage and Iron Company versus Ritchie. इस केस में क्या हुआ? कंपनी का ऑब्जेक्ट था क्या करना? रेलवे ट्रैक्स वेगन्स बनाना, लैंड बिल्डिंग मशीनरीज मिनरल्स बेचना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स करना और जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। और कंपनी ने क्या काम कर दिया? कंपनी ने काम किया कि कंपनी ने लोन देने का प्रॉमिस कर दिया रिची को। क्वेश्चन यहाँ पे ये था, क्या लोन देना इस एबीसी में कवर हुआ एज ऑब्जेक्ट? सर नहीं, लोन देना कवर नहीं हो पाया। तो अगर लोन देना इस एबीसी में कवर नहीं हो रहा है तो उसे हम क्या मानेंगे? लोन देना एबीसी कवर नहीं होता तो कोर्ट ने क्या बोला कि इसे हम अल्ट्रावाइज मानेंगे एंड बियॉन्ड द पावर्स मानेंगे। ठीक है, इफेक्ट क्या आएगा? दिस आर ऑलवेज व्हाट आई बीन शो। क्या ये रेटिफाई हो सकते? कभी भी रेटिफाई नहीं हो सकते। मतलब क्या ये कभी वैलिड बन सकते? नहीं। नंबर 3, क्या आपको पता चला हो एज ए मेंबर कि आपकी कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो क्या है? वो एक कॉन्ट्रैक्ट है जो अल्ट्रावायलेट है, तो उसको क्या कर सकते हो? इंजन रोक सकते हो। who will be liability will be of directors for breach of trust. That's it, we have done doctrine of ultravirus. डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, बहुत इजीली समझ में आएगा ये पार्ट, ध्यान से समझना। दिस डॉक्ट्रिन ऑपरेट्स इन फेवर ऑफ द कंपनी, दैट इज इट क्रिएट्स अ प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ द कंपनी, इट ऑपरेट्स अगेंस्ट द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी। थोड़ी देर में समझ में आएगा, शांति रखना। वन सजेस्टेड द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स आर विच डॉक्यूमेंट्स गाइस? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। Therefore, every person dealing with the company is presumed to have read memorandum and articles, and further, it is presumed that he has understood the provisions of memorandum and articles in the right sense. Thus, it is required for every person to appraise himself with the requirements of MOA and AOA before entering into contract with the company. If a person enters into a contract with the company without understanding the provisions of MOA and AOA, he cannot enforce the contract. स्मॉल था, सिंपल था, कुछ नहीं लिखा, वो सिर्फ इतना कहा है कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस। Now what you have understood here is, once I am telling you earlier कि it's our public documents. Public documents refers to what? कि you have to check it out before you enter into contact with the company. Then don't blame the company. So it's like it is in the favor of whom? Company. आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया और वो कॉन्ट्रैक्ट एमओए के बाहर है, ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर था, तो हम रिस्पॉन्सिबल क्यों होंगे? आप होंगे, क्योंकि आपको बोला गया था कि आप क्या पढ़ के आइए, एमओए एओए पढ़ लीजिएगा। सो हाउ विल वी नो? सर, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आपने पढ़ा है, लॉ को ना समझना, ना पढ़ना कोई बहाना नहीं है। एज्यूम्ड है कि जिस देश में आप रहते हो उसका कानून आपको पता होना चाहिए, भले ही आप अनपढ़ गवार हो, फिर भी आपको पता होना चाहिए। दैट्स हाउ द लॉ इज। आप कहोगे मुझे लॉ पता नहीं था, किसी को मार दोगे, बोलोगे मुझे पता है, ऐसा ना चलता है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आपने जीएसटी नहीं भरा, इनकम टैक्स नहीं पे, मुझे इनकम टैक्स नहीं आता, मुझे जीएसटी नहीं, ऐसा नहीं चलता। You have to follow with the rules applicable to the country as a whole. तो यहाँ पे MOA AOA को क्या माना गया? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। बोला ये आपका ड्यूटी है कि आपको MOA AOA पढ़ना चाहिए, और उसमें अगर आपको लगे कि आप जो एंटर कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट वो उसके बाहर जा रहा है, चुपचाप बैठ जाओ, एंटर मत करो। फिर भी एंटर किया तो समझ लेना पंगा होगा। आइए जानते हैं यहाँ पे। इट इज इन फेवर ऑफ होम? कंपनी, क्योंकि कंपनी के लिए मजा है कि कंपनी को बोला कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा थर्ड पार्टी। कब? इन्होंने बोला कि भाई मेमोरेंडम आर्टिकल्स डॉक्यूमेंट्स कौन से है? पब्लिक। Therefore, every person dealing with the company is presumed to have read the memorandum and articles. It is presumed that he has understood the provisions of MOA very correctly in the right sense. Presume हो गया। Thus, it is required of every person to appraise, to check himself with requirements of MOA before entering with the company.
कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड एग्रीमेंट बन जाएगा, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायलेंस देखा है, और फाइनली ये एनफोर्सेबल नहीं होगा। सर क्या ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायलेंस ये सेम है? ये दोनों एक ही है, खाली ये क्या कहता है कि ये है, ये आपको पढ़ के आना चाहिए था क्या, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, क्योंकि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। दैट्स हाउ इट इज। नाउ द लास्ट पार्ट गाइस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और टर्कवान रूल। टर्कवान क्यों? क्योंकि इस केस का नाम टर्कवान था जिसमें ये यूज हुआ था। अब ये कहता है जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ कंसर्न नोटिस कंपनी के फेवर में है, वैसे ये जो है ना वो बाहर वालों के, आउटसाइडर्स के फेवर में है। इट इज इन द फेवर ऑफ आउटसाइडर्स, दैट इज इट इज इन फेवर ऑफ द थर्ड पार्टीज, बाहर वाले, कंपनी के अगेंस्ट जाता है। ये कहता है कि outsiders dealing with the company are not required to inquire regarding internal management of the company. आउटसाइडर्स ये देख के आएंगे, एमओए पढ़ के आएंगे, बट इंटरनली क्या हो रहा है कंपनी के अंदर वो देखना उनका काम नहीं है, वो चेक करने नहीं बैठेंगे। आउटसाइडर्स डीलिंग विद द कंपनी आर entitled to assume that as far as internal regulations of the companies are concerned, everything is done regularly, it is presumed and therefore reputable। मतलब ये कहना चाह रहा है कि वी आर एक्सेप्टिंग अ फैक्ट कि एज फार एज इंटरनल प्रोसेस आर कंसर्न एवरीथिंग विल बी एट पार, कुछ भी गलती नहीं होगी, सब बराबर काम कर, ऐसा हम मानते रहेंगे। Therefore, doctrine prevents innocent outsiders from any irregularity present in the working of the company, provided he had acknowledge of the memorandum articles and he complied with the requirements contained in the memorandum articles। लास्ट पॉइंट को समझने को थोड़ा सा टाइम जाएगा, एक्सेप्शन के साथ समझोगे क्लियरली। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर गलती इनसाइडर्स की है, गलती कंपनी के लोगों की है, उसके लिए थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। अगर हमने मेमोरेंडम नहीं पढ़ा तो हम रिस्पॉन्सिबल होने, जो हमने मेमोरेंडम पढ़ा था ठीक से पर तुम्हारे लोगों ने काम ठीक से नहीं किया, उसके लिए हम लायबल नहीं होंगे। सर समझाओ कैसे होगा ये, सुनो ध्यान से। पहले हम इसका ना केस स्टडी पढ़ ले, इफेक्ट बाद में देखते हैं। किसका नाम क्या है? रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवान, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टर्कवान रूल। ठीक है, देखो क्या लिखा है कंपनी के आर्टिकल्स में। लिखा था that the directors could borrow money on behalf of the company if they are so authorized by resolution passed by shareholders in a general meeting। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा था कि डायरेक्टर्स कुड बोरो मनी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एंड इफ दे आर सो ऑथराइज्ड बाय द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द शेयरहोल्डर्स इन अ जीएम। मतलब कंपनी ने कहा था कि कंपनी के डायरेक्टर्स को हमने पावर दिया है कि वो बोरो कर सकता है कंपनी के लिए, लेकिन उसके लिए उन्हें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा इन अ जनरल मीटिंग। ठीक है, मतलब शेयर होल्डर्स को बोला गया आपको लोन लेना है लो, अब मेंबर्स का अप्रूवल लो और लोन लेना है लो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा एओए में लिखा था। अब होता क्या है, डायरेक्टर्स बोरोड मनी फ्रॉम टी विदाउट ऑब्टेनिंग द ऑथराइजेशन फ्रॉम शेयर होल्डर्स। हुआ क्या कि उन्होंने बोरो कर दिया पैसा, बट डायरेक्टर्स ने किसका अप्रूवल नहीं लिया, अपने शेयर होल्डर्स का अप्रूवल ही नहीं लिया। अब टी जो है, वो जो बैंक है रॉयल ब्रिटिश बैंक, उसको ये लगा कि अप्रूवल लेना तो डायरेक्टर्स का काम था, अब वो अप्रूवल लेंगे या नहीं लेंगे वो मैं क्यों देखूं, मुझे सिर्फ ये देखना था कि डायरेक्टर्स को पावर है या नहीं लोन लेने का। उन्होंने कहा हाँ डायरेक्टर्स को पावर है, लिखा है एओए के अंदर। अब उन्होंने अप्रूवल नहीं लिया, वो उनका प्रॉब्लम है। मेरा प्रॉब्लम तो सिर्फ क्या था कि क्या डायरेक्टर्स को हम लोन दे सकते हैं या नहीं। आप बोलोगे कि आपको ये भी देखना चाहिए था कि उन्होंने अप्रूवल लिया या नहीं लिया। सर मैं क्या क्या देखूं, मैं ये भी देखूं कि आपका बंदा आपका काम ठीक से कर रहा है या नहीं, और ये मैं भी देखूं कि आपको मैं लोन जो दे रहा हूँ वो सही बंदे को दे रहा है या नहीं दे रहा हूँ। मेरा काम है उनको लोन देना जो एलिजिबल है। आपने कहा था डायरेक्टर्स को कि अगर उनको लोन चाहिए तो दे हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ मेंबर्स, मैंने थोड़ी कहा था, या आपने कहा था कि डायरेक्टर्स हैज टू टेक अप्रूवल? क्या आपने लिखा था कि बैंक हैज टू टेक अप्रूवल, बैंक टू चेक दैट वेदर दे हैव टेकन? नो सर, नो। इसे कहते हैं इंटरनल इरेगुलरिटी। इसे क्या कहते हैं? इंटरनल इरेगुलरिटी, जहां पे डायरेक्टर्स ने गलती की है किसकी अप्रूवल ना लेकर, मेंबर्स की अप्रूवल ना लेकर। इट इज अ मिस्टेक ऑफ डायरेक्टर्स एंड नॉट ऑफ होम,
इट इज अ मिस्टेक ऑफ डायरेक्टर्स एंड नॉट ऑफ द बैंक। अब ये कहता है इट वॉज हेल्ड दैट borrowing of money by directors without authorization from shareholders amounted to mere internal irregularity, and since T, the banker, had no knowledge of such irregularity, he would not be prejudicial by such internal irregularity. He would not be prejudicial मतलब he has a right to enforce. अब वो अपने पैसे वसूल कर पाएगा किसके पास से? He will be entitled to receive money from the company, क्योंकि गलती कंपनी की, सॉरी गलती यहाँ पे बैंक की नहीं है, गलती यहाँ पे डायरेक्टर्स की है। वो किसके लिए काम कर रहे हैं? कंपनी के लिए। तो गलती वो करेगा तो कंपनी भुगतेगा, कंपनी उनसे रिकवर कर ले पैसा। बट यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा? थर्ड पार्टीज विल हैव राइट टू सू द कंपनी एंड गेट द मनी बैक, क्योंकि ये अल्ट्रा वाइज नहीं है। इसे कहते हैं क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहते हैं। वापस पढ़िए एज पर इसके फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स अब आपको समझ में क्लियरली आएंगे। पहले, outsiders dealing with the company are not required to inquire regarding internal management affairs. Number 2, dealing with the company are entitled to assume that as far internal affairs are concerned वो सब ठीक से चल रहा है, assume कर सकते हैं, आपको चेक नहीं करना है। ये कहता है outsiders, it is protecting the outsiders from irregularity present in the working of the company. हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि भाई सब ठीक है और ठीक नहीं हुआ तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो आप देखो डायरेक्टर देखे हमें फर्क पड़ता नहीं, हम तो सू करेंगे, पैसा ले लेंगे। अब आता है केस लॉ, जहाँ पे हमने देखा कि डायरेक्टर्स को बोला गया था कि अप्रूवल लो मेंबर्स की और उसके बाद लोन लो। आपको लोन लेने का हक है। अप्रूवल लेने के बाद डायरेक्टर जाता है बैंक में लोन लेने के लिए, बैंक ने लोन दे दिया, क्या देखा कि डायरेक्टर लेने को आया। बैंक ने ये नहीं देखा कि बैंक ने के डायरेक्टर्स ने अप्रूवल लिया है मेंबर्स का, नहीं। लोन ने क्या बोला? लोन लिया, अप्रूवल लिया नहीं लिया किसका मैटर है? इट इज द रोल ऑफ डायरेक्टर्स टू सी कि वेदर they are taking approval or not. It is the role of company to check whether directors are doing that or not. But it is not the role of bankers to check. टी मतलब बैंक यहाँ पे कि whether taking approvals or not. यहाँ पे लॉ ने बोला कि भाई वो आपका internal irregularity है because of which ये इशू आया है। तो you have to just understand this way कि ये कौन बेयर करेगा? कंपनी बेयर करेगी, क्योंकि आपके लोगों ने आपका अप्रूवल जो आपका रूल था वो फॉलो नहीं किया है, उसके लिए आउटसाइड लायबल नहीं होंगे। इसलिए बोला कि इट इज इन फेवर ऑफ होम, इट इज इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टीज, आउटसाइडर्स, एंड नॉट इन द फेवर ऑफ कंपनी। कंपनी को भुगतना पड़ा यहाँ पे। समझ में आ रहा है? यस। इसके इफेक्ट क्या है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट entered on behalf of the company by any director or officer. Therefore, it is enforceable against the company if provisions contained in the memorandum articles have complied with, even though while entering into contract there was some internal irregularity and which was outsider was unaware of it. मतलब अगर इरेगुलरिटी था भी, फिर भी कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? कंपनी रिस्पॉन्सिबल रहेगी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टर्स ने गलती कर दी। इसको हम क्या कहते हैं पता है? सुनना ध्यान से। इसे हम कहते हैं ट्रांजेक्शन ऐसा था जो अल्ट्रा वायस डायरेक्टर्स था, बट इंट्रा वायस कंपनी था। डायरेक्टर्स ने अपने पावर्स के बाहर काम कर दिया, इसलिए उसको कहते हैं अल्ट्रा वायस डायरेक्टर्स। बट कंपनी को पावर था लोन लेने का, इसलिए इसे कहते हैं इंट्रा वायस द कंपनी। अल्ट्रा वायस द डायरेक्टर्स एंड इंट्रा वायस द कंपनी। समझ में आ रहा है? अल्ट्रा वायस द डायरेक्टर्स एंड इंट्रा वायस द कंपनी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको इंटर में कभी काम में आता है। अब आते हैं एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, एंड दैट्स इट, इट गेट्स ओवर। व्हेन वी फिनिश दिस, आपने 90% कंपनीज एक्ट फिनिश कर दिया लेक्चर 3 पे, एंड देन द लेक्चर 4 विल बी ऑफ 20 मिनट्स मैक्सिमम, एंड दैट्स इट, वी हैव डन इट। नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी ये कहता है अगर आप खुद अवेयर थे, आपको पता था कि डायरेक्टर्स ने अप्रूवल किसका नहीं लिया, डायरेक्टर्स ने अप्रूवल नहीं लिया है मेंबर्स का, फिर भी आपने लोन दिया, तो आप फंस जाओगे। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर आप बेनिफिट नहीं ले सकते कंपनी को सुकर, क्योंकि आपको पता था। कॉन्सेप्ट क्या? अगर आपको पता नहीं था तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आपने जानबूझ के गलती की तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट नहीं मिलेगा मतलब फिर आप कंपनी पे केस नहीं कर पाओगे टू रिसीव योर मनी बैक। पर्सन डीलिंग विद द कंपनी हैव नॉलेज ऑफ एन इरेगुलरिटी. Obviously, the presumption that every internal proceeding have been conducted regularly shall be cancelled. That is, they cannot assume that everything has been done regularly. अगर आपको पता था कि वो अप्रूवल नहीं ले पाया है तो कैसे आपको बेनिफिट दें हम लोग?
आपको पता था तो आपको नहीं करना चाहिए था, तो फिर हम कंपनी, तो फिर ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंटर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होगा, आप फंस जाओगे। कौन? थर्ड पार्टी फंस जाएगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं गाइस? एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं। केस however says patent every manufacturing company, I think this is very important for you, ध्यान से समझना। Directors of a company could borrow up to £1,000 without sanction of members in a GM। क्या लिमिट बोला गया है? £1,000 का लिमिट बोला गया है। The consent of shareholders was required to borrow in excess of £1,000। बोला कि इसके ऊपर अगर आप बोरो करोगे तो आपको अप्रूवल लगेगा मेंबर्स का, ठीक है। डायरेक्टर्स ने ही लोन दे दिया, कितने का? £3,500 का कंपनी को। अब आप मुझे ये बताओ, जस्ट सेकेंड, लेट मी चार्ज माय लैपटॉप। अब आप मुझे ये बताओ गाइस, अगर डायरेक्टर ने लोन दिया £3,500 का, किसको? कंपनी को, तो क्या उसको पता नहीं होगा कि £1,000 के ऊपर उसे मेंबर्स का अप्रूवल लगता है? डेफिनेटली यस। फिर भी उसने क्या किया? £3,500 का कंपनी को लोन दिया। यहाँ पे क्या वो नॉलेज रखता है इरेगुलरिटी का या नहीं? आंसर इज यस, क्योंकि डायरेक्टर खुद को अप्रूवल लेना था और डायरेक्टर खुद लोन दे रहा है कंपनी को। इट वॉज हेल्ड दैट डायरेक्टर्स हैड नोटिस ऑफ इरेगुलरिटी एंड देयरफॉर कंपनी वाज लायबल टू देम फॉर ओनली £1,000, क्योंकि £1,000 तक अलाउड था, ऊपर के लिए मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए थी। डायरेक्टर्स ने होशियारी की, बिना अप्रूवल के लोन दे दिया, और खुद लोन दिया, मतलब उनको खुद पता ही था किस बारे में, कि 1,000 के ऊपर मेंबर्स की अप्रूवल लेनी चाहिए थी। एज ए बोर्ड डायरेक्टर, बोर्ड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी तो था, उसने ऐसा नहीं किया, मतलब वो अवेयर था फिर भी नहीं किया और रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। नंबर 2, अगर वो केयरलेस रहता है, नेग्लिजेंट रिगार्डिंग सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, तो फिर भी उसे बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब आपको लगता है कि यार आप एटलीस्ट कॉमन सेंस यूज करते, वो भी आप यूज नहीं करोगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा इंटर मैनेजमेंट अगेंस्ट द कंपनी। एग्जाम्पल समझ में आएगा। एक अकाउंटेंट था जिसने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी टू सेल द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। अब आप सोचो कि एक अकाउंटेंट का लेवल या कैपेबिलिटी होता है कंपनी का प्रॉपर्टी बेचने का? आपको समझ में आना चाहिए था कि हाउ कैन अकाउंटेंट बी कॉम्पिटेंट टू सेल द प्रॉपर्टी। It was held that the third party could not assume that the accountant was authorized by the company to sell the property. Therefore, third party could not enforce the contract against the company, even though third party has acted bona fide. थर्ड पार्टी सीधा आदमी था, उसको पेपर्स देके, पेपर्स उसने पेपर्स खरीद लिए और बोला मैं जगह खरीदता हूँ। थर्ड पार्टी ने सोचा भी नहीं कि अकाउंटेंट को कैसा पावर देगा कंपनी टू सेल द प्रॉपर्टी। अब लॉ ने बोल दिया कि आपको कॉमन सेंस यूज करना चाहिए था। हाउ कैन अकाउंटेंट बी ऑथोराइज्ड बाय द कंपनी टू सेल प्रॉपर्टी? कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए हैं, सीईओ सीएफओ बनाए हैं, आपने अकाउंटेंट से प्रॉपर्टी खरीदी कंपनी की, ये प्रॉपर्टी आपकी होगी नहीं, आपने कुछ दिया है तो वापस ले लो और कॉन्ट्रैक्ट को फोक करो, वॉइड करो, हम इसको लायबल नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप नेग्लिजेंट हो, क्योंकि आप केयरलेस हो, आपने आपने आपकी राइटनेस कॉमन सेंस यूज नहीं की टू अंडरस्टैंड वेदर he'll be liable for it or not, whether he'll be competent to sell the property or not. That is regarding what? That is regarding क्या अकाउंटेंट competent होता है या नहीं होता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये केस स्टडी एग्जाम में आ सकता है। नंबर 3, फॉर्जरी। ये कहता है फॉर्जरी में भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा टू सू द कंपनी। क्यों? क्योंकि फॉर्जरी नलिटी होती है। सुनते हैं, मजेदार केस स्टडी है। मुझे ये बताना, अगर आपने एक आईफोन खरीदा किसी बंदे से सेकेंड हैंड में, या फिर से विदाउट बिल, या फिर कोई कस्टम से, उसने कहा ये ओरिजिनल आईफोन है 1,00,000 रुपए का, मैं आपको देता हूँ 20,000 में, और आपने वो आईफोन खरीद लिया। खरीदने के बाद आपने ये देखा कि वो फ़ोन थोड़ा ठीक से चल नहीं रहा था। आप गए सर्विस सेंटर आईफोन के, वो बताया फ़ोन कि ये चल नहीं रहा है ठीक से। सर्विस सेंटर वाला बोला कि मैम ये हमारा फ़ोन है ही नहीं,
ये तो हमने बेचा ही नहीं, डुप्लीकेट है, किसी ने इशू क्रिएट किया। क्या आप आईफोन वाले को सू कर सकते हो, एप्पल को, कि भाई हम आप पे केस करेंगे? वो बोलेगा हम पे केस क्यों करोगे, हमने थोड़ी ना बेचा है। कोई बंदा हमारे नाम पे बेच रहा है, हम क्या करें, वो डुप्लीकेट है, वो आप उसको पकड़ो जाके, हमको क्यों पकड़ रहे हो? आपको समझ में आ रहा है? वैसे ही यहाँ पे केस है, सुनो ध्यान से। अ शेयर सर्टिफिकेट वॉज इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। कंपनी के कॉमन सील के हिसाब से शेयर सर्टिफिकेट, शेयर इशू होता था। द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी हैज साइंड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट्स। किसे साइन किया था? सीएस ने। However, the signatures of two directors were also required on it, which were forged by secretary. मतलब टोटल 3 साइन चाहिए थे शेयर सर्टिफिकेट पे, एक सेक्रेटरी का, दूसरा 2 डायरेक्टर्स का। लेकिन क्या हुआ, सेक्रेटरी ने खुद का साइन भी कर दिया, बाकी 2 डायरेक्टर्स का साइन खुद ही कर लिया। The holders of share certificate contended that he was not aware of the fact of the forge and was not possible for him to determine whether the signatures were forged or genuine, and therefore certificates issued to him should be valid. अब हुआ क्या, ये शेयर सर्टिफिकेट जो थे, होल्डर ने जब क्लेम किया कि मेरे पास शेयर है, मैं कंपनी के शेयर होल्डर हूँ, कंपनी बोला कि तू शेयर होल्डर है ही नहीं। क्यों? कि जब तूने शेयर्स खरीदे थे तो वो साइन होनी चाहिए थी किसकी? डायरेक्टर्स की 2 और सीएस की। तेरे केस में सीएस ने साइन की तीनों के तीनों और भाग गया है। वो बोलेगा कि मैं क्या करूं सर, वो भाग गया है तो अब मैं क्या करूं, मैंने तो कंपनी को पैसे दिए पूरे। कंपनी एक्ट बोला कि तूने भले पैसे दिए सीएस को ये पूरे ट्रांजेक्शन के, पर लॉ ने ये लिखा है कि वो साइन होना चाहिए तीनों से, और तेरे केस में साइन तीनों का हुआ ही नहीं। सेम किसका है? साइन सिर्फ एक ही का है, वो किसका? सीएस का। बाकी दोनों का साइन हुआ ही नहीं है। तो अगर फॉर्जरी हुई है तो तू किसको पकड़? वो लड़की को, सीएस को पकड़ जिसने तीनों का साइन किया। हमको पकड़ के मतलब नहीं, क्योंकि हमने शायद शेयर इशू किए ही नहीं है। Court held that it is forgery. There is no defect or in consent. There is absence of consent. Therefore, certificate issued by the way of forgery is void. Thus, certificate is invalid. कोर्ट ने मना कर दिया, ये सर्टिफिकेट वैलिड ही नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेट वैलिड कब बनता है? जब तीनों ने साइन की होती। यहाँ पे साइन तीनों की है, बट इन्होंने की नहीं है। उन्होंने क्या बोला था कि इट हैज टू साइन बाय 3 नॉट बाय 1। इट वाज नॉट साइंड बाय 3, इट वाज साइंड बाय 1। नलिटी, वॉइड। और लॉ ने क्या बोल दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना नहीं जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना नहीं जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा? इसे वॉइड माना जाएगा। गाइस, आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने 1 महीना जॉब किया, जॉब करने के बाद बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, आपको सैलरी आई 15,000 रुपये की। अब जो सैलरी 15,000 रुपये की आपकी आई, आपने पैसे लिए और आपने वो पैसे लेके आप घर पे जा रहे थे, ठीक है। अब जैसे आपने कुछ शॉपिंग करना चाहा, मम्मी के लिए कुछ साड़ी खरीदी, भाई के लिए शर्ट खरीदा, पापा के लिए टी शर्ट खरीदा, खाने खरीदने गए कोई शॉपिंग मॉल में, तो जैसे ही आपने वो कैश दिए, उन्होंने कहा ये कैश तो नकली है, ये कैश तो नकली है, ये असली नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये कैश नकली है तो आप उस आपके बॉस के पास जाओगे या आरबीआई के पास जाओगे? आप आरबीआई को बोलोगे ये नकली कैश है, मुझे असली दो। वैसे ही आप कंपनी के पास नहीं जा सकते, आप उस, आपको किसने वो सर्टिफिकेट दिया? वो सीएस ने दिया, उसके आप केस करो, कोई मना नहीं है। क्या आपके वो नोट वैलिड माने जाएंगे? नहीं। क्या उसका कोई पैसा आएगा? क्या कहोगे मैंने मेहनत की थी सर, प्लीज 15,000 रुपये सही रखो, प्लीज मुझे कपड़े दो? नहीं दे पाएगा। क्यों? वो शेयर सर्टिफिकेट ओरिजिनल, वो पैसे ओरिजिनल नहीं है, वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं है। आप किस पे केस कर सकते हो यहाँ पे? आपके बॉस पे, जिसे सैलरी दी उस पे कर सकते हो। वैसे यहाँ पे वो सीएस पे कर सकते हो, किस पे नहीं कर सकते? कंपनी पे कर सकते नहीं हो, क्योंकि कंपनी को पता ही नहीं ऐसा कुछ हुआ है। दिस इज कॉल्ड एब्सेंस ऑफ कंसेंट। सिग्नेचर में गलती नहीं है, सिग्नेचर ही गलत है, सिग्नेचर में गलती नहीं है, सिग्नेचर ही गलत है। इसलिए लॉ ने बोला है फॉर्जरी क्या होती है? फॉर्जरी नलिटी होती है, उसमें कोई प्रोटेक्शन मिलता नहीं है। अब सुन लीजिए ध्यान से, कौन से 3 सिचुएशंस में आपको डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का बेनिफिट नहीं मिलेगा? कब आप कंपनी पे सू नहीं कर सकते? कब आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना नहीं जाएगा? एक, अगर आपको खुद पता था कि यहाँ पे कोई इरेगुलरिटी है। 2, आप नेग्लिजेंट थे, आप केयरलेस थे। नंबर 3, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, फॉर्जरी हुई है। इस तीनों में आप क्या नहीं हो सकते? इस तीनों के अंदर आप लायबल हो सकते नहीं हो। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। दिस इज वेयर वी फिनिश ऑफ योर पार्ट 3। इसमें हमने सिर्फ क्या देखा? मीनिंग ऑफ मेमोरेंडम, कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम, आर्टिकल्स का सिर्फ मीनिंग,
फिर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायस, डॉक्ट्रिन ऑफ अनसर्टेन नोटिस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। मैं एक और सेशन वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता था बट टू लेट नाइट, ऑलरेडी 12 बज चुके हैं। टुमारो मॉर्निंग आई विल जस्ट अपलोड दैट, इट्स हार्डली 20 मिनट्स लेफ्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे दोनों मर्ज कर दी है। ठीक है, सी यू, गुड नाइट, प्लीज डू कमेंट आफ्टर योर लेक्चर गेट्स ओवर, थैंक यू सो मच।